एवरीवन। सो आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस डिस्कशन को हम शुरू करेंगे विद आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे लैक ducts and hence they are called ductless gland, and secretion of endocrine glands they are called as hormones. अब जब हम बात करें कि what is a hormone, so hormone basically is a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transport to the located target organ, right? And hormone हमारे non nutrient chemicals होते हैं and they act as intercellular messengers, जो कि मैसेज को पास करते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अदर एंड देन टू द अदर देन टू द अदर, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. सो जब हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इन ह्यूमन बॉडी देयर आर वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिफरेंट लोकेशंस. फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, पैराथायरॉयड, थाइमस, गोनैड्स, इवन हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. Right, in this diagram we can clearly see the various endocrine glands such as hypothalamus, pituitary, pineal gland, thymus, the pancreas, adrenal on the kidney, right, gonads, ovary and testis, right. तो सबसे पहले we will start with our hypothalamus gland. So hypothalamus is a crucial part of human brain and it plays essential role in maintaining homeostasis and it also regulates various physiological process. तो अब हम बात करेंगे कि अबाउट द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस. सो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एंड आलमंड शेप रीजन, राइट. एंड जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन बिलो द थैलेमस and just above pituitary gland, right. इस diagram में we can see that this is our pituitary gland and this is our hypothalamus. It is just above the pituitary gland and it is small and like an almond shape. The hypothalamus gland, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को और वी कैन से पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन्स और बाय रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, राइट. बाय रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन, it inhibits the growth hormone and TSH hormone, that is thyroid stimulating hormone. And when we talk about growth hormone releasing hormone, so it stimulates growth hormone release. Gonadotropin releasing hormones जिसको कि हम GnRH कहते हैं, it stimulates the release of FSH and LH. And when we talk about thyrotropin releasing hormone, it stimulates the release of TSH from anterior pituitary, right. The next is homeostasis regulation, and homeostasis का मतलब होता है maintaining the internal balance of the body. So hypothalamus plays an important role in maintaining the internal balance of body. अब ये बैलेंस वो रेगुलेट कैसे करता है? by regulating body temperature, water balance
फूड इनटेक एंड स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं. The next function of hypothalamus is the control of autonomic nervous system. The gland hypothalamus बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, द ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन by controlling the autonomic nervous system. एंड hypothalamus हमारे बहुत सारे बिहेवियल और इमोशनल रेगुलेशंस को भी अफेक्ट करता है, सच एज द इमोशन ऑफ एंगर, प्लेजर, राइट, and it play a role in body stress response by activating adrenal glands. Now the next is production of hormones stored in posterior pituitary, right. तो hypothalamus synthesize हमारे ऑक्सीटोसिन hormones which stimulates uterine contraction during childbirth and milk ejection during breastfeeding. And the next is ADH, anti-diuretic hormone, which help in water reabsorption. So हमारा ADH हार्मोन वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. और इन लास्ट अभी हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस. नाउ द नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट. ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इट्स लोकेशन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले तो इट्स अ स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, राइट. जब हमने हाइपोथैलेमस की लोकेशन की बात करी थी तो हमने कहा था इट इज़ जस्ट अबव द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी इज जस्ट बिलो द hypothalamus, right. You can clearly see in this diagram, right, this is hypothalamus. और अगर हम लास्ट डायग्राम को भी देखते हैं तो we can clearly see that this region is pituitary gland, right. It is hypothalamus and just below hypothalamus is pituitary. and pituitary हमारा दो regions में divided होता है, anterior lobe and posterior lobe, right. तो we can हम देख सकते हैं that pituitary gland is divided into two lobes. सबसे पहला होता है anterior lobe जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, एंड द नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, राइट. एंड एडिशनल टू दीज टू लोब्स एक स्मॉल इंटरमीडिएट लोब भी होता है इन सम एनिमल्स, बट इट इज रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी. सो एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस, राइट. तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी इट सेक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन्स which stimulates the growth of bones and tissues, prolactin hormones which promotes milk production in lactating females after the birth of child, right. And this also secretes thyroid stimulating hormones जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. द नेक्स्ट इज एडिनोकॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल्स. तो ये सब हम बाद में इन फ्यूचर स्लाइड डिस्कस करेंगे, कॉर्टिसोल हार्मोन, थायरॉक्सिन. द नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, इट स्टिमुलेट्स गैमेट प्रोडक्शन, राइट, spermatogenesis male and follicular growth in females. And the next is luteinizing hormone, it triggers ovulation and stimulates the production of sex hormone, testosterone in case of male and estrogen in case of females. तो
these are the list of hormones which are produced by anterior pituitary, or we can say adenohypophysis. And the next is posterior pituitary, or we can say neurohypophysis. It stores and releases hormone which are synthesized by hypothalamus. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हॉर्मोन्स बनाती है, सेक्रिएट करती है. फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन इट फैसिलिटेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और दूसरा हार्मोन होता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH और वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, विच प्रोमोट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. अब जब हम पिट्यूटरी हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड की रेगुलेशन की बात करते हैं, सो द हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को बाय प्रोड्यूसिंग सम रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स की सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए विल गो बैक. हाँ, यहाँ पर इन दिस हमने जब पहला फंक्शन पढ़ा था हाइपोथैलेमस का, कि दैट इट रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रीशन. तो जितने भी हैं ये थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, राइट, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, सोमैटोस्टैटिन, ये सारे हमारे पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करे या दूसरे हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, राइट. सो पिट्यूटरी की सेक्रीशंस को हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. दिस इज ऑल अबाउट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशन से देर आर वेरियस डिजीजेस. तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस ज़्यादा हो रही हैं, और वी कैन से हाइपर सेक्रीशन, तो उस केस में जाइगेंटिज्म होता है, विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, and acromegaly in case of excess growth hormones in adulthood, right. अब जब हम बात करें हाइपोसेक्रीशन की, तो जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है इन चाइल्डहुड, इट इज़ कॉल्ड एज डॉफिज्म. एंड व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH अकर्स, वी सेड इट डायबिटीज इंसिपिडस, राइट. और एक और कंडीशन है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस. इट इज रिलेटेड टू ब्लड लेवल इन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, वेयर एज डायबिटीज इंसिपिडस इट इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH हॉर्मोन्स. तो हम इन डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटिस में कंफ्यूज नहीं होंगे. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करने वाले हैं, दैट इज पीनियल ग्लैंड. सो पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो अ स्मॉल a P-shape endocrine gland located in the brain, right. The pineal gland is situated in the epithalamus near the center of the brain, right, between the two hemispheres, right. हम जानते ही हैं जब भी हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्रेन में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. तो उनके बीच में नियर द सेंटर विद इन द एपिथैलेमस हमारा पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, राइट. इट इज स्मॉल, रफली 5 to 8 millimeter in size. Now the gland is secreted by a connective tissue capsule, और उस पर कैल्शियम डिपॉजिट्स होती है, जिसको वी कॉल्ड एज ब्रेन सैंड, राइट, जो कि एज के साथ बढ़ता है. एंड पीनियल ग्लैंड इट सेक्रीट्स मेलाटोनिन. वो मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है विच इन्फ्लुएंस आवर स्लीप वेक साइकिल एंड सीजनल बायोलॉजिकल रिदम्स, राइट. कैन क्लियरली सी, लगभग कहीं ना कहीं सेंटर में इट इज pineal gland is present, right. This is pituitary gland, that is hypothalamus, this is thallus. Now pineal gland it secrete melatonin, which regulates, or we can say which maintains our sleep wake cycle and seasonal biological rhythm.
नाउ हम एक एक करके दोनों हार्मोन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले विल स्टडी अबाउट द मेलाटोनिन। So it's regulate our 24-hour biological clock, right? Now its melatonin inhibits the release of gonadotropin from anterior pituitary, जो कि इन्फ्लुएंस करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल को, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट सीजनल बायोलॉजिकल रिदम, राइट। इट एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड मे हैव अ रोल इन डिलेइंग एजिंग, राइट। मेलाटोनिन हार्मोन की सेक्रीशन एज भी डिले करती है। तो इफ़ वी आर प्रॉपरली स्लीपिंग, राइट, और अगर हम अपनी 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखें, राइट, उसमें इरेगुलरिटी पैटर्न ना हो, हमारा उठने का टाइम एक फिक्स हो, एक स्लीपिंग पैटर्न फिक्स हो, राइट, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप हो, तो वी कैन से अ डिले आवर एज, राइट। जहाँ भी हम देखते हैं इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, देर रात तक जग रहे हैं, फिर सुबह जल्दी उठ गए, फिर नेक्स्ट डे फिर रात तक जग रहे हैं, तो इन पैटर्न्स की वजह से मेलाटोनिन फंक्शंस भी हमारे इफेक्ट होते हैं। तो इससे सीजनल बायोलॉजिकल रिदम में भी वी कैन सी सम चेंजेस। नाउ मेलाटोनिन की सेक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय लाइट एक्सपोजर। इट इज़ हायर ड्यूरिंग द नाइट एंड लो होती है ड्यूरिंग द डे। अब ये लाइट का एक्सपोजर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसका भी अपना एक मैकेनिज्म है, दैट की जो रेटिना होता है, इट डिटेक्ट्स लाइट एंड सिग्नल विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑफ हाइपोथैलेमस टू पीनियल ग्लैंड की, राइट। इट इज़ नाइट टाइम, तो जैसे ही नाइट टाइम क्लोज आना शुरू होगा, मेलाटोनिन सेक्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही डे आना शुरू होगा, मेलाटोनिन सेक्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा हमारा सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस विच इज सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस, उसकी वजह से होता है। जैसे ही रेटिना लाइट डिटेक्ट करेगा, एक सिग्नल ट्रांसमिट होगा थ्रू सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस टू पीनियल ग्लैंड, राइट। सो अभी हमने फंक्शन डिस्कस करे, दैट इट्स रेगुलेट बायोलॉजिकल रिदम, puberty onset, act as a biological clock. Now the next gland है हमारा thyroid gland. Now thyroid gland, it plays a role in regulating various metabolic processes. जब हम लोकेशन की बात करते हैं, the thyroid gland is located in the neck, anterior to trachea एंड बिलो द लैरिंग्स। तो इन सब टर्म्स को हम समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे कि जब भी हम थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ लोकेटेड इन द नेक, एंटीरियर टू ट्रैकिया एंड बिलो द लैरिंग्स। यू कैन क्लियरली सी इस डायग्राम में दैट दिस इज आवर थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन में है। दिस इज आवर ट्रैकिया, ट्रैकिया के इंटीरियर पे है, राइट। दो लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड दीज लोब्स आर जॉइंट बाय isthmus, राइट। यहाँ दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स connected by a thin tissue called isthmus, right. The gland is highly vascularized and it appear as reddish brown in color. Now we'll talk about कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो थायराइड हमारे 3 हार्मोन्स रिलीज करता है। सबसे पहला T4, T3 एंड कैल्सीटोनिन। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट T4. T4 is a major hormone and it constitutes about 90% of the thyroid secretion. And T4 regulate करता है हमारा BMR, that is basal metabolic rate, हमारा growth and development.
और जब हम द नेक्स्ट इज T3 हार्मोन, एंड T3 हार्मोन इज बायोलॉजिकली मोर एक्टिव देन T4, और ये भी रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। देन द लास्ट इज कैल्सिटोनिन। नाउ कैल्सिटोनिन क्या करता है, दैट द कैल्सिटोनिन हॉर्मोन्स lowers blood calcium level by promoting deposition of calcium in the bones। तो कैल्सिटोनिन हॉर्मोन्स हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करता है बाय डिपॉजिटिंग द कैल्शियम इन द बोन, राइट। तो ये दीज आर द 3 हॉर्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। T4, T3, ये दोनों ही हॉर्मोन्स हमारे BMR, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। T3 बायोलॉजिकली मोर एक्टिव होता है, जबकि T4 एक मेजर हार्मोन है एंड इट इज कंस्टिट्यूट्स अबाउट द 90% ऑफ थायराइड सेक्रीशन। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, regulation of metabolism and how it regulate the metabolism, that it increase the rate of glucose oxidation, protein synthesis enhance करता है and it metabolize fat। growth and development essential for normal growth especially of bones and nervous system, right। and it's a deficiency during childhood, religious deficiency during childhood can lead to cretinism, which is a stunted growth and mental retardation। it maintains body temperature, जिसको कि हम thermoregulation कहते हैं। thyroid hormone can increase heart rate and cardiac output, और अभी जस्ट हमने डिस्कस करा इट प्लेज रोल इन ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ अब थायराइड हॉर्मोन्स की सेक्रीशन आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, राइट। सो अब इस ये एक्सिस मैकेनिज्म काम कैसे करता है, तो इसमें जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इट सेक्रीट्स थायोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स TRH। अब ये TRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड जाकर T3 T4 को रिलीज करता है। तो इट इज एन hypothalamus pituitary and thyroid axis which regulates the thyroid hormone secretion। अब थायराइड हार्मोन्स के सेक्रीशन से देर आर सर्टेन डिजीजेस, राइट। अगर सेक्रीशन ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, राइट। इसमें वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट, हीट इंटॉलरेंस एंड नर्वसनेस, फॉर एग्जांपल ग्रेव डिजीज। और अगर सेक्रीशन कम है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, वेयर वी कैन सी फैटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड ड्राई स्किन। तो अगर ऐसा होता है इन चाइल्डहुड केस में, अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं तो उसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, एंड इन एडल्ट वी कॉल्ड इट मैक्सिडीमा। And the next is goiter. Abnormal enlargement of thyroid gland causes goiter, and ये abnormal enlargement होती है आयोडीन डेफिशिएंसी की कमी से। And the next is अगर thyroid gland में there is uncontrolled growth of cell, तो it can leads to thyroid cancer। Now the next gland is parathyroid gland। The parathyroid gland, they are located behind the thyroid. It plays crucial role in regulating body's calcium and phosphate balance। तो location we just have discussed behind the thyroid gland, right। तो typically
देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, बट ये नंबर वेरी कर सकता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, राइट। एंड लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, और हमारे थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो हर लोब पर देयर इज 2 पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स, तो लेफ्ट लोब पे 2 एंड राइट लोब पे 2, तो देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ऑन बोथ द, इन दोनों को अगर हम दोनों लोब्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आते हैं। एंड पैराथायरॉयड सेक्रीट सिंगल हार्मोन जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, और वी कैन से इट पैराथ हार्मोन, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द, वी कैन से फ्रंट व्यू ऑफ आवर थायरॉयड ग्लैंड, और जब हम बैक व्यू देखते हैं थायरॉयड ग्लैंड का तो वी नो कि इट इज बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। तो ये दीज आर इस्थमस, ये हमारा लेफ्ट लोब और इसको हम राइट लोब कहते हैं। तो ईच लोब पर there are 2 parathyroid hormones present behind the thyroid gland. Talk about the functions of the thyroid gland. We just have discussed that thyroid gland हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो सबसे पहले we will discuss the regulation of blood calcium levels. So parathyroid hormones, it increases calcium level in the blood by stimulating the release of calcium from bones. एंड इसी का ऑपोजिट काम हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है बाय डिपॉजिटिंग द कैल्शियम टू बोन्स, एंड जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स से कैल्शियम को रिलीज कराता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, राइट। एंड इट promotes a reabsorption of calcium in kidneys to reduce the calcium loss, and it enhance calcium absorption in intestine by the activation of vitamin D, right। So हमारे intestine में to absorb calcium vitamin D is necessary। हम बात करते हैं कि हाउ पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स द फॉस्फेट लेवल। सो पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज करता है ब्लड फॉस्फेट को बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द डिजीजेस रिलेटेड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। पहला है हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जहाँ पर ओवर प्रोडक्शन होता है ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेंगे, जिसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, जो कि बोन वीक करेगा क्योंकि कैल्शियम लेवल बढ़ ही रहा है, इस वजह से कि हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोन से कैल्शियम को रिलीज करा रहा है। तो जब ज़्यादा बढ़ गया है ब्लड में कैल्शियम लेवल तो बोन्स में ऑब्वियसली वीकनेस आएगी, किडनी में स्टोन्स देख सकते हैं, एंड फैटीग होता है। एंड अंडर प्रोडक्शन है ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इसमें ब्लड में कैल्शियम लेवल्स आर लो, जिसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, एंड इस वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, मसल स्पैज़म एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं।